Hi everyone, welcome to Definitely. And in this session, we will learn how to do a pipeline analysis. See, so this session is brought to you by Definitely. And in this 60-minute session, we are going to learn about a couple of topics like what is pipeline analysis, what's the definition of pipeline analysis, the purpose, its importance. Then we will learn about what are the various sources that we use for pipeline analysis. And this session will be, so just for the audience, this session will be in Hindi and English, both languages, so that you people can easily understand about each terminology that we are going to use. So sources for pipeline analysis. In sources, we will use like what are the primary and secondary data sources that we can use for doing this sort of analysis. Then drug development stages, why we need to understand drug development stages for preparing these sort of charts. And after that, we will learn what are the different type of charts that we use to produce the end result. So see, once you do that, do the pipeline analysis, right? You have understood कि ठीक है, this asset is in phase one, this asset is in, and for your information, asset is basically a drug. So all these drug candidates which are in development or approved, they are called as asset. Why? Because they are asset for all of these companies. Because by selling these assets, they this company earn revenue. That's why all these drugs, they are known as assets in these license companies. So we will understand that, okay, if we want to show the assets on a slide or a chart, what are the various ways of representation? After that, we will also have the radar or bullseye pipeline chart, and we will discuss key in what type of situations we use the timeline sort of pipeline chart, and in what type of situation we use a sort of radar or bullseye pipeline chart. Then we will discuss the approval timelines and PDUFA date, why they are necessary, and how do they play an important role in doing sort of analysis. क्यों करते हैं हम? What's their use in on the slide that we are going to prepare. Then we will discuss what are the some of the red flags and catalyst or key signals that we need to monitor while doing this sort of analysis. So moving to the next slide. So what is pipeline analysis? See, so if we read the definition, it means that pipeline analysis is the systemic evaluation of a pharmaceutical or biotech company's portfolio of drug candidates across different stages of development, from discovery through approval to assess business value, competitive positioning, and investment potential. In layman terms, see, if I make it very simple and easy for you to understand, see, a company develop n number of molecules, right? So if you go to any company website and you go to their pipeline section, then you will see कि ठीक है, okay, this company is developing, for example, say 200 assets or 50 assets. Now, out of this 50 assets, right? Some will be in phase two, some will be in preclinical stage, or some will be in late stage pipeline development, that is phase 2 by 3, phase 3. Now, if I give you like 200 assets, right? And you want to evaluate a company, like how strong it is in terms of its pipeline, and you want to do a competitive sort of intelligence or positioning key. For example, say you have 10 companies. Now you want to understand out of these 10 companies, which are the leading one in oncology or say in any indication. So how will you understand? You will look at their market products. You will look at their pipeline products. कि ठीक है, अभी market में these companies have assets, but yeah, then we other competitors, they're also developing some of their drugs which are very strong or which are in late stage development. So this is one reason. Now another one is due diligence. Due diligence is if you want to understand. See, many times you must have seen that these small biotech companies, they're acquired by these large biotech, right? For example, Roche, Novartis, Pfizer, they have acquired n number of these small biotech companies. So on what sort of metrics these bigger companies acquire the smaller ones? So they do sort of due diligence. Due diligence means they evaluate the company on each and every metric, एंड जैसी ठीक है, इसके पाइपलाइन में ये सब एसेट्स हैं एंड मेरी पाइपलाइन में एसेट्स नहीं है, और if I'm being a very if I'm being very naive to a particular indication, but I see I have a lot of money, so instead of developing an asset from scratch, I can buy a company. In that sort of situations, we also do pipeline analysis. And then for investment research,
ठीक है, ये सब हमारी कंपनी से जो अच्छा करेंगे आने वाले टाइम में, सो इन्वेस्टर्स पुट देयर मनी इनटू दिस कंपनीज। Why, for all of these things, we do need to do pipeline analysis. So now coming to next slide. So the next slide is what are the sources for pipeline analysis. See, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि पाइपलाइन एनालिसिस के लिए हमें डेटा किसके लिए चाहिए। सो वी नीड टू गेट द डेटा फॉर अ ड्रग। उसका कोई ट्रायल है, उसकी कोई न्यूज़ है, या फिर किसी भी ज्योग्राफी में कुछ कंपनी ने उसके ऊपर बोला है, ठीक है, कंपनी के पाइप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस में, या फिर कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ से हमें उस एसेट के बारे में कोई भी अपडेट मिल रहा है, वो हमारा क्या बन जाएगा, सोर्सेज फॉर पाइपलाइन एनालिसिस। सो अगर इनको हम क्लासिफाई करें, सो देयर लाइक रफली 4 different टाइप ऑफ सोर्सेज which you can use for doing pipeline analysis. So the first one is regulatory and government. See, clinical trials or gov पे हमें क्या मिलेगा। And in case you want to go for Europe, so you can go to Utracity, or China के लिए they have their own website, so you can go there as well. So see, ct.gov पे हमें किसी भी ड्रग के जितने भी ट्रायल्स हैं वो मिल जाएंगे, राइट। वी विल गेट इन्फॉर्मेशन कि हाउ मैनी ट्रायल्स आर देयर फॉर दैट पर्टिकुलर ड्रग, वो सब ट्रायल्स किस इंडिकेशन में है, उनका फेज क्या है, ये सब हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट FDA, ड्रग्स एट द रेट FDA, सो वहां पर हमें ये मिल पता लग जाएगा कि ओके, दिस ड्रग वाज अप्रूव्ड इन विच ईयर। फॉर एग्जांपल, ये कहाँ पे यूज होएगा। मान लो यू आर डूइंग अ पाइपलाइन एनालिसिस फॉर मार्केटेड प्रोडक्ट्स, राइट। यू वांट टू प्रिपेयर अ सॉर्ट ऑफ टाइमलाइन चार्ट कि ठीक है, हम मुझे देखना है कि मार्केटेड ड्रग्स क्या है। तो हाउ विल यू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन मार्केटेड ड्रग्स दैट हैव बीन अप्रूव्ड, जो किस ईयर में अप्रूव हुए थे। ईदर यू कैन गो and do their label check on drugs at the rate FDA, or there is also one website that is called as FDA drug approval history. So if you, for example, अगर मेरे को चेक करना है when was Keytruda approved in different cancers, right? So what you can do, you can go to Chrome and check this Keytruda drug approval history. वहाँ पे you will get a sort of timeline view, and I will also sort of uh, walk you. So if I write Keytruda drug approval history, I know just click enter. तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा पूरा का पूरा, इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा, एक टाइमलाइन व्यू मिल जाएगा कि ठीक है, सबसे पहले जो गेट फ्रूट है वो किस ईयर में अप्रूव हुआ था, किस डेट को हुआ था, किस इंडिकेशन में। सी, ऑल दीज आर की टू द अप्रूवल। नाउ दिस इज अ वास्ट दिस अ ड्रग which has approval in multiple indication, but बहुत सारी ड्रग्स का हमें एक सिंपल सा चार्ट मिल जाएगा, राइट। So this is how you can gather information of when a drug was approved. Next, FDA की वेबसाइट पे, if you again go to Chrome and click on FDA और ये search FDA PDUFA date, तो वहाँ पे एक वेब पेज ओपन होएगा, वहाँ पे हम PDUFA डेट देख सकते हैं। PDUFA डेट इज प्रिस्क्रिप्शन ड्रग यूजर फी एक्ट। तो इट्स लाइक, सी, जैसे वी पीपल अप्लाई फॉर लाइसेंस, राइट। वी अप्लाई फॉर अवर फार्मेसिस्ट लाइसेंस और sort of any license. देन देयर इज थिंग दैट इज कॉल्ड एज पेमेंट, जो हम करते हैं, एंड हमें पता होता है कि ओके, पेमेंट करने के बाद गवर्नमेंट का ये एक रिकमेंडेशन है कि विद इन 14 days यू विल गेट योर लाइसेंस और एनीथिंग। सेम गोज फॉर ड्रग एज वेल। सो PDUFA डेट इज द लास्ट डेट फॉर FDA टू टेक एन एक्शन ऑन दैट ड्रग, कि ठीक है, उस टाइम तक हमें वो ड्रग को अप्रूव करना है, नहीं करना है। दैट इज कॉल्ड एज PDUFA डेट। सो PDUFA डेट अगर हमें किसी भी ड्रग की पता है, तो हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि ठीक है, अगर PDUFA डेट इस टाइम पर है, देन पॉसिबली ये जो हमारी एप्लीकेशन है अप्रूव हो जाएगी, एंड उसके बाद हमारी ड्रग को इस टाइम तक अप्रूवल मिल जाएगा, राइट। सो बेसिकली इट्स अ गाइडलाइन फॉर द FDA टू रिव्यू अ न्यू ड्रग और बायोलॉजिक एप्लीकेशन। ऐसे नहीं कि आप जस्ट उस फाइल को रख कर बैठ गए एंड FDA डजंट टेक डिसीजन ऑन इट फॉर लाइक कपल ऑफ इयर्स, ऐसा नहीं होता। देयर इज अ गाइडलाइन फॉर दैट। नाउ फॉर EMA और यूरोप, यू कैन गो टू EMA क्लिनिकल ट्रायल रजिस्टर और यूरोपियन ट्रायल्स जो वेबसाइट है, वहाँ पे जा सकते हो, यूट्रासिटी पे। चाइना के लिए NMPA जो उनकी वेबसाइट है, वहाँ पे देख सकते हो। अलग अलग देशों के अलग अलग कंट्रीज के, दे हैव देयर ओन डिफरेंट राइट एंड अप्रूवल वेबसाइट्स।
Now the next source is company filings and IR. See, company filings and IR is one of the most important thing, right? क्यों? क्योंकि कंपनी की जो वेबसाइट होती है पाइपलाइन, वहां पर हम जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ठीक है, these are the different applications in which a drug is being developed. For example, say मैंने टाइप किया Roche develop product development pipeline and if I to see pharma में they have mentioned, देखो, these are the compound, this is trade name or brand name, this is the indication, वो सब इस phase में है, like this drug is in phase for filing में, then expected filing कब है, then you also get some of these filters managed by expected filing, partner, phase, and then ये सब filters लगा सकते हैं. So this is where you get information from company website. Along with that, if you go to investors, right? So investor may have investor updates, events. Then if I click on investors, so we will get information on different things. प्रोडक्ट डेवलपमेंट पाइपलाइन, ठीक है, यहाँ पे हमें इन कंपनीज की प्रेजेंटेशन भी मिलेंगी, जैसे उनकी क्वार्टरली प्रेजेंटेशन होती है, जहाँ पर ये सब कंपनी और इनके एनुअल रिपोर्ट्स हो गई, हाफ ईयरली रिपोर्ट्स हो गई. तो यहाँ पर ये सब कंपनीज क्या करती है, दे गिव इंफॉर्मेशन ऑन देयर पाइपलाइन की ठीक है, वी आर एक्सपेक्टेड टू वी आर एक्सपेक्टिंग टू फाइंड दिस ड्रग बाय दिस और बाय दिस टाइम, किसका कोई पोस्टर प्रेजेंट होएगा और किसी कॉन्फ्रेंस में ड्रग का हम कोई रिजल्ट पब्लिश करेंगे. ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू विल गेट फ्रॉम दिस 10K reports, 20 pipeline tables, then quarterly reports, 8K reports होती है, trial readouts होते हैं, यहाँ पे regulatory decisions होते हैं, then investor presentations, webcast. So these are all the sources which you can use for gathering information on a particular drug. And process is same. For example, if I want to search for Keytruda, now Keytruda के लिए मुझे मर्क की वेबसाइट पे देखना पड़ेगा, एंड मर्क का मुझे यहाँ 10K देखना पड़ेगा, उसका पाइपलाइन देखना पड़ेगा, उसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखनी पड़ेगी. So ऐसा करके आई कैन गो टू एनी वेबसाइट, कंपनी वेबसाइट, एंड वहाँ पर सब इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकता हूँ. Now, along with this, there are also some paid research database. So paid research database includes Evaluate Pharma, Evaluate MedTech, Cortelis, Global Data, Biometric, Pharma Project, Hypera, Pipeline Intelligence. See, so what all of these companies do, ये जितने भी हमारे डेटा प्रोवाइडर हैं एक तरीके से, राइट, ऑल ऑफ दीज कंपनीज, क्लैरिवेट, ग्लोबल डेटा, दे आर डेटा प्रोवाइडर एंड दे हैव देयर ओन एनालिस्ट व्हिच ट्रैक दीज एसेट्स, एंड उनके बारे में डिफरेंट डिटेल्स वो बताते हैं कि ठीक है, दिस एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्रूव्ड बाय दिस टाइम, इसका ये वाला रिजल्ट कब आएगा, ये वाला रिजल्ट अब आएगा. एंड इफ यू टॉक अबाउट लाइक साइडलाइन, सो साइडलाइन भी एक साइडलाइन बायोमेट्रिक का फार्मा प्रोजेक्ट, तो साइडलाइन पे जाओगे तो यू विल गेट अ सॉर्ट ऑफ very comprehensive view कि ठीक है, these are the recent findings or recent happenings for a drug. Then there are some news sources as well, CS Pharma, Biopharma, conference के abstract हैं, SCOASH, EHA, AHA, ESMO, then PubMed हो गया, और कंपनी के जो भी सोशल हैंडल्स हो गए, तो वहां पर भी हम ये सब ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं. Now, once you have collected all of this information for the pipeline, ठीक है, एक ड्रग के बारे में हमें सब इंफॉर्मेशन मिल गई है कि वो किस, वो मार्केटेड है नहीं है, कौन से फेज में है, किस इंडिकेशन में अप्रूव्ड है, और किस पेशेंट सेगमेंट में है, उसका ट्रायल रीड आउट कब है, उसका एक्सपेक्टेड अप्रूवल कब है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, before going to that, we will also discuss drug development stage. So see, why we need to collect all of this information, right? कुछ कंपनीज के एसेट फेज 1 में होंगे, फेज 2 में होंगे, फेज 3 में होंगे, कुछ रिव्यू में होंगे, कुछ अप्रूव हो चुके होंगे, एंड हर एक स्टेज का देयर इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सक्सेस रेट. ठीक है, कि अगर वो यहाँ पे 63% है, 35 है, 58 है, 12% है, तो हमें समझना है कि ठीक है, देखो, अगर एक कंपनी के पास बहुत सारी फेज 1 एसेट है, राइट, एंड एक कंपनी के पास कुछ ही एसेट्स हैं फेज 2 एंड फेज 3 में, बट हाँ, उनका फेज 1 में कोई एसेट नहीं, दे हैव मोर एसेट्स इन फेज 2 एंड फेज 3. फॉर एग्जांपल, सिर्फ एक कंपनी के पास 10 एसेट्स हैं फेज 1 में, एंड एक कंपनी के पास 3 एसेट्स हैं फेज 2 एंड फेज 3 कंबाइंड में. देन इफ आई वांट टू मेक अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सो आई विल सी कि ठीक है, फेज 2 और 3 में जो सक्सेस रेट है विद टाइम वो ज़्यादा है, एंड ये लेट स्टेज में भी है, तो मे बी आई विल इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, क्योंकि फेज 1 में तो टाइम बहुत लगेगा, एंड देन मुझे अब ये भी नहीं पता कि कितने एसिड्स आएंगे, तो बहुत सारा टाइम लगेगा. सो लाइक दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो हमें प्लान एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है. नाउ, once you have collected all the information for a drug,
So next thing is to arrange that information in sort of timeline chart or timeline pipeline chart. Now there are different ways in which you can represent an asset और जिसके थ्रू हम उसका पाइपलाइन एनालिसिस कर सकते हैं. So you must be seeing that there are two charts, like chart number 1 and chart number 2. सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि इस टाइप का टाइमलाइन पाइपलाइन चार्ट बनाने के लिए हमें देखो, अभी हमने इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर ली, राइट. वी हैव कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सेनोफी की पाइपलाइन बनानी है, राइट, तो आई एंड मुझे डर्मेटोलॉजी में बनानी है. सो आई सो कि ठीक है, सैनोफी की जो डर्मेटोलॉजी में एसिड्स है, दे आर इन एटोपिक डर्माटाइटिस, सोरियासिस, ये 6 और 7 टाइप के इंडिकेशन है जहाँ पे सैनोफी अपने एसिड डेवलप कर रहा है डर्मेटोलॉजी थेरेपी में. देन फाइजर इन सभी इंडिकेशंस में डेवलप कर रहा है, एफबी यहाँ पे कर रहा है, नोवार्टिस यहाँ पे कर रहा है, इनसाइट यहाँ पे कर रहा है, लिली यहाँ पर कर रहा है, ईसीबी यहाँ पर कर रहा है. व्यू मिल गया कि डर्मेटोलॉजी में ये 6 और 7 कंपनीज इनके एसेट्स इसी सिंडिकेशन में डेवलप हो रहे हैं. एंड देन इन विच स्टेज दे आर. फॉर एग्जांपल, अगर मैं मुझसे कोई पूछ रहा है कि ऐसा मुझे ये बताओ सैनोफी का कौन सा एसेट अप्रूव्ड है, तो आई विल से कि ठीक है, एटोपिक डर्मेटाइटिस में पिपिक्सेंट इज अप्रूव्ड. It is also approved in Heradantis suppurativa. Then it is also approved in prurigo nodularis. Then Bullos Benfifigo, then CSU में approved है. If someone has मुझे ठीक है, मुझे एपिक एसिड बताओ जो फेज 1 में है. Then I will say okay, एफबी के पास दो एसिड है, एक तो ABPP 547 जो सोरियासिस में है, then ABPP 722 जो स्क्लेरोडर्मा में फेज में है. तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं इन चार्ट में और डिटेल में जाने से पहले कि वाई इज अ टाइमलाइन पिपलाइन चार्ट. सी, अभी हमें ड्रग की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, राइट, उसके पाइपलाइन के बारे में कि ड्रग किस इंडिकेशन में डेवलप हो रहा है, किस पेशेंट सेगमेंट में डेवलप हो रहा है, अभी करेंटली कहाँ वो अप्रूव्ड है, राइट, और अगर वो सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट में भी है तो कहाँ डेवलपमेंट में है, लाइक उसका फेज 1 में, फेज 2 में, फेज 3 में है, या वो कब तक अप्रूव हो जाएगा, और अगर अप्रूव नहीं हुआ तो कब, अगर कोई मार्केट ड्रग है तो हाँ किस टाइम मार्केटेड हुआ था. तो सब इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई. अब द थिंग इज कि हमें इस इंफॉर्मेशन को अरेंज करना है एक वे में जिससे हम समझ पाए, जो भी रीडर है, कि ठीक है ये कंपनी की पाइपलाइन है एंड दिस इज when this drug is going to get approved or whether this drug is in phase 2 or phase 3, right. सो ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम क्या करते हैं, हम दो टाइप के चार्ट बनाते हैं. वन इज टाइमलाइन एंड द अदर वन इज बुलसाई और रेडार पाइपलाइन चार्ट. सो इन timeline pipeline chart, what we do, we show each drug candidate as a horizontal bar spanning its development phase. अभी ये वाले चार्ट का एक और एग्जांपल देंगे हम. और अगर मार्केटेड है तो हम बस उनका अप्रूवल ईयर दिखा सकते हैं. देन हमेशा हम एक्स एक्सिस पे अपना टाइम रखते हैं ईयर्स में, जैसे यहाँ पे 2012, 13, 14, 15, ठीक है, 24, 25. और मैं इनको कलर कोड कर सकता हूँ मैं थेरेपी एरिया और डेवलपमेंट स्टेज, राइट. सो सी, अगर मैं इस चार्ट में देखूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने उसको डेवलपमेंट स्टेज के अकॉर्डिंग कलर कोड कर दिया है कि जो पिंक वाले मेरे सारे हैं वो फेज 2 में है, ग्रे वाले सारे फेज 1 में है, ब्लू वाले, लाइट ब्लू वाले सारे फेज 3, एंड देन जो अप्रूव्ड है वो है डार्क ब्लू में. And then it also highlights upcoming catalysts, data readouts, PDUFA dates, and trial completions, right? And also it helps us to enable at a glance comparison of a company near versus long-term value drivers. सी, अब यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि डुपिक्सेंट बहुत सारे एरियाज में अप्रूव्ड है, मतलब डुपिक्सेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सैनोफी. सेम फॉर फाइजर के लिए विच ड्रग इज इंपॉर्टेंट जो अभी तक अप्रूव्ड है. अब नाउ if I look at the type of timeline pipeline chart, so first one is the sort of pipeline chart जहाँ पर हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है कि कौन सा ड्रग कब अप्रूव्ड हो रहा है, ठीक है. वी जस्ट वांट टू शो फेजेस. इस वाले चार्ट में हमें बस यहाँ पर ये बताना है कि ठीक है, सनोफी का जो ड्रग है, सनोफी की पाइपलाइन कैसे दिखती है, किस फेज में उसके एसेट है, फिर फाइजर की किस किस फेज में एसेट है डर्मेटोलॉजी में, सिम्फोरेबी, नोवार्टिस, इनसाइक्लिन, ईसीडी. मुझे पहले वाले टाइमलाइन चार्ट में मेरा गोल है, मुझे बस दिखाना है कि कंपनी की प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर है. सो दिस टाइप ऑफ चार्ट इज यूज फॉर एग्जीक्यूटिव discussions. For example, if you want to discuss with a CEO or CFO,
एंड यू जस्ट वांट टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है, ये डर्मेटोलॉजी स्पेस में थेरेपी, अगर मुझे किसी भी थेरेपी एरिया का एक तरीके से प्रेजेंस दिखाना है इस थेरेपी एरिया में, ये 6 or 7 कंपनीज हैं जिनके बहुत सारे एसेट्स हैं, दे आर द लीडिंग वन. So I prepare a sort of chart which is highlighted through the first image. Now, if I look at the second image, so second image में मेरा देखो जितने भी assets हैं, all these assets are approved. जहाँ पे हम ये यूएस और ईयू का फ्लैग देख रहे हैं, राइट. सी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इनको कलर कोड और मैंने इनको सेपरेट कर दिया बाय देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. जो सेकंड टेबल है मेरा वो दिखा रहा है, सेकंड इमेज मेरा दिखा रहा है assets which are approved for ovarian cancer. सो मैंने इसको कैसे डिवाइड किया, मैंने किया इफ द ड्रग्स बाय देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की यहाँ पे कीमोथेरेपी वाले कौन से ड्रग हैं, पार्प इनहिबिटर्स कौन से हैं, बायोमार्कर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कौन से हैं, और एफआर अल्फा रिसेप्टर्स वाले ड्रग कौन से हैं. क्योंकि मुझे अप्रूवल टाइमलाइन दिखाना था कि कौन सा ड्रग कब अप्रूवल है. और एंड इस साइड पे सारे के सारे जो एसेट्स हैं दे आर मार्केटेड, दे आर नॉट इन पाइपलाइन. दिस इज सॉर्ट ऑफ मार्केटेड पाइपलाइन ओवरव्यू और मार्केटेड टाइमलाइन व्यू. सो व्हाट आई हैव डन, यहाँ पे मैंने इस सेक्शन में बताया कि ठीक है, मेरी प्लेटिनम थेरेपी, टोपोटेक्यान, टॉक्सिल, एवस्टिक, ये सब जो कीमोथेरेपी टारगेट में आते हैं कब कब अप्रूव है. सो देखो ये एसेट मेरा 2012 में कभी अप्रूव हुए थे या उससे पहले, फर्स्ट लाइन एंड रिकरेंट प्लेटिनम सेंसिटिव इस वाले पेशेंट सेगमेंट में. दैन टोपोटेक्यान ये कब था मेरा, ये रिकरेंट कैंसर में अप्रूव था. सेम विद यहाँ पे जैसे पार्पिन एपिट्रिस में जो क्लास है, यहाँ पे 3 से 4 ड्रग है मेरे, जेजुला, लिम्पार्जर, रुब्राका. एंड यहाँ पे सी आई हैव मेंशन कि ठीक है, जेजुला मेरा 2017 में अप्रूव हुआ था रिकरेंट प्लेटिनम सेंसिटिव मेंटेनेंस इस वाले कैंसर में, और 2020 में इट वाज अप्रूव्ड इन फर्स्ट लाइन मेंटेनेंस. एंड देन जैम्पेरली दिस वाज अप्रूव्ड इन this time. So this is a sort of मार्केटेड पाइपलाइन चार्ट जहाँ पे मुझे बस वो एसेट्स दिखाने जो ऑलरेडी मार्केटेड है, राइट. एंड आई जस्ट वांट टू शो कि ठीक है, ये वाला ड्रग इस टाइम पे अप्रूव हुआ था, इसको हम यहाँ कहाँ पर यूज करते हैं. एंड वी वांट टू डू अ हिस्टोरिकल पाइपलाइन एनालिसिस कि ठीक है, इस वाली कंपनी ने ये ड्रग इस टाइम पे लॉन्च किया था इस वाले पेशेंट सेगमेंट में और इसको इस टाइम अप्रूवल मिला था. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ चार्ट विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज, एंड जिस पे हम दिखाते हैं कि कंपनी की करंट पाइपलाइन क्या है, कुछ टाइम बाद कहाँ से अप्रूवल मिल सकता है, एंड व्हाट आर द की कैटलिस्ट्स, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. So this is a sort of this is an example of a detailed pipeline analysis of a company and all of the information that is very accurately represented. So इस वाली slide पे what we have done a sort of comparative landscape analysis, or we have done a sort of pipeline analysis. So pipeline analysis like just it comes under comparative landscape. So यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा है कि जो हमारा DMD है, right? DMD is Duchenne muscular dystrophy. So what are the various assets that are presented for that particular indication? What are different type of companies जो यहाँ पर प्ले कर रही हैं और जो यहाँ पे लेट स्टेज डेवलपमेंट में है, उनका फेस क्या है, उनका डेटा रीड आउट कब है, कैसे कैसे हम इन सबको प्रेजेंट करते हैं. तो सी कैसे मैं इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ. Now I look at the brand. So brand is Alvarez, Sarepta. Then उसका mechanism of action क्या है, it is like denadestrozone of ठीक है, उसका like sort of this is not like मतलब but it's generic name. Then population, किस population के लिए वो डेवलप हो रही है, 4 to 7, 6 to 10, एंड then उसका करंट स्टेटस क्या है. सो करंट स्टेटस, सो सी द पॉपुलेशन ये आएगा हमारा क्लिनिकल ट्रायल से, ब्रांड कंपनी ये आएगा हमारा कंपनी के वेबसाइट से, देन ए वी कैप्सिड टाइपर प्रमोटर, ये जो डिटेल्स है हमें ये इस बिकॉज इज जीन थेरेपी ये इंपॉर्टेंट है इसलिए स्लाइड पे, बट हाँ ये सब डिटेल्स आपको, ये जो कैप्सिड टाइपर प्रमोटर दीज आर नॉट वेरी यूजफुल फॉर अदर टाइप ऑफ इंडिकेशंस. सी करंट स्टेटस में हम डालते हैं एंड साइज क्या है, उसका फेस कंप्लीशन डेट क्या है,
because PCT sometimes used to calculate कि drug का approval कब होगा. See, so this drug is in phase 3 embark and size मतलब total number of patients that are enrolled in that is 126, and then October 2026 is shown as its phase completion date. Then फिर फेज 3 की ये ड्रग है यहाँ पे, देन ये वाली ड्रग का ये है फेज कंप्लीशन डेट एंड साइज, ऐसे करके हमने सब ये इन्फॉर्मेशन डाल दी. एंड वी आल्सो हैव वन कैंडिडेट फ्रॉम प्री क्लिनिकल स्टेज. देन ट्रायल कब स्टार्ट हुआ था वो हमने डाला, उसको हमने कलर कर दिया. सो सी, अब एक क्वेश्चन जो हमने एक पॉइंट अपने लास्ट स्लाइड पे देखा था. सो वेन एवर यू आर मेकिंग दिस सॉर्ट ऑफ टाइमलाइन पाइपलाइन चार्ट, सो यू हैव टू वाई एक्सिस पे हमें लेना है इंडिविजुअल पाइपलाइन एसेट्स, राइट, एंड एक्स पे हमें लेना है टाइम पीरियड्स में. सो सी, यहाँ पे हमने एक्स पे क्या लिया, टाइम लिया 2022, 23, 24, 25, 26, 27, एंड देन हमने अलग अलग क्वार्टर्स में इसको डिवाइड कर दिया. अब मुझे इसको यहाँ से देख के ये पता लग रहा है कि ठीक है, दिसंबर 2023 में कोई की कैटलिस्ट इवेंट हुआ था जहाँ पे कंपनी ने अपना लेबल एक्सपेंशन का एक फाइल किया था. एंड यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ पोटेंशियल अप्रूवल. सो सी, पोटेंशियल अप्रूवल या तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल अप्रूवल कब है, या यूएस में कब है, ईयू में कब है, ठीक है. एंड देन अगर मुझे यहाँ पे पोटेंशियल अप्रूवल नहीं दिखा रहा है तब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे भी एक फ्लैग डाल सकता हूँ कंट्री का. सी, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला कि क्वार्टर 2025 में इस ड्रग का अप्रूवल हो जाएगा. सो मैंने यूएस में, तो मैंने क्वार्टर टू 2025 में यहाँ पे चार्ट आइकन दिखा दिया यूएस का, एंड देन यू में क्वार्टर 3 होएगा तो यहाँ पर मैंने वो दिखा दिया. So this APT H1R1, you don't have to worry about this thing because this is simply a sort of uh, capsid representation. You see, this thing is like I have capsid type. So यहाँ पे present किया, but yeah, when you are making your own timeline slides, pipeline timeline slides, you don't have to do anything else. ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं. You just have to highlight कि ठीक है कौन से उसमें start हुआ था. Either you can fill out the colors, or either you can just simply use an arrow. ठीक है, either you can simply use an arrow as well, और इस arrow में icon and icon. अगर ये एरो को मैं यहाँ रखूंगा एंड इस एरो को मैं यहाँ तक रख दूंगा, ठीक है. तो मुझे ये पता लगता है कि ठीक है, ये जो एसेट है मेरा UX810, इसका ट्रायल 2023 में Q1 में स्टार्ट होगा एंड देन 2026 में Q4 में एंड हो जाएगा. देन फिर मैं इसका एडिशनल डिटेल्स डाल सकता हूँ. अगर मुझे इसका लग रहा है कि अप्रूवल 2027 में, तो मैं यहाँ पे यूएस का अपने डाल दूंगा इस क्वार्टर में. देन नेक्स्ट क्वार्टर में मुझे पता लग रहा है कि ईयू में अप्रूवल है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा. फिर मुझे कोई फेस कंप्लीशन डेट के बारे में पता लग रहा है तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा. We will also look at one more example, which is going to. This is another example of making a sort of timeline. ठीक है, सो सी, टाइमलाइन दिया मैंने ऐसे सिंपल एक एरो लगाए एंड उनके बाद पिवोटल ट्रायल्स बताया अपने कि ठीक है इस वाले ड्रग का ये पिवोटल ट्रायल है, ये पेशेंट पॉपुलेशन है, ये कंपैरेटर है, एंड साइज किया है, एंड देन टाइमलाइन में जाके बता दिया कि ठीक है ये वाला जो ट्रायल है इस ड्रग का, ये सितंबर में स्टार्ट हुआ था, फेब में गया, एंड देन प्राइमरी एंड पॉइंट्स क्या है, कब कब उसका कोई मेरा इंटरिम डेटा रीड आउट है, फेज कंप्लीशन डेट, एक्सपेक्टेड यूएस अप्रूवल है, राइट. सेम वे में जैसे ऊपर अभी हमने देखा था डीएमडी का, उसको अगर हमें और सिंपली रिप्रेजेंट करना हो, सो वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट लाइक दिस एज वेल. सो हम ऐसा कुछ टाइमलाइन प्रिपेयर करके भी उसको इजीली दिखा सकते हैं. नाउ सी, व्हाट आर द डिफरेंट चेंजेस व्हिच आई हैव डन इन दिस स्लाइड. सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ब्रांड कंपनी का लोगो लगा दिया, पेशेंट पॉपुलेशन को ऐसे रखा, फेज एंड साइज को रखा, वेक्टर प्रमोटर रखा, ट्रांसजीन को मैंने यहाँ पे बता दिया. देन 2022 से लेकर 27 या 28 तक दिखाया. इसका मतलब है कि ये ट्रायल 2022 से पहले स्टार्ट हुआ था. यहाँ पे मैंने जैसे वहाँ पे फिल किया था ना, इंस्टेड ऑफ फिलिंग आई हैव यूज्ड सिंपल यहाँ पे बार्स और लाइंस. मैंने ट्रायल का ज्योग्राफी बता दिया, फिर फेज कंप्लीशन डेट बता दिया कि ठीक है इस टाइम पे इसका फेज कंप्लीशन डेट होगा, एंड देन एक्सपेक्टेड यूएस अप्रूवल जिसकी मैंने बात की थी. सो दिस इज हाउ यू गैदर इंफॉर्मेशन फॉर बिल्डिंग, हाउ यू बिल्ड अ सॉर्ट ऑफ पाइपलाइन चार्ट. ठीक है,
Now, for doing this sort of pipeline analysis, what is the step-by-step construction guide or approach? So सबसे पहले हमें सब pipeline data इकट्ठा करना होता है, and how you do that? So you have to check all the pipeline assets from company filings, clinicaltrial.gov. Then you have to what are the various fields which are necessary. You have to see, you have to include drug name, उसका indication, phase, trial start and end date, end day submission date. Then हमें डेटा टेबल बनाना होता है. डेटा टेबल इज नथिंग, जस्ट एक सिंपल एक्सेल बना दिया, एक टेबल बना दिया पावर पॉइंट में, जहाँ पे हमने लिस्ट क्या ठीक है, ये ड्रग का नेम है, इंडिकेशन, उसका फेज, स्टार्ट डेट, एंड डेट क्या है, डिफरेंट कैटेलिस्ट कब आ रहे हैं, एंड देन हमने उसको फेज से अरेंज किया. सो द जनरल प्रैक्टिस इज टू फर्स्ट फोकस ऑन फेज 3 एसेट, देन हमें फेज 2 इंक्लूड करना होता है, देन फेज 1 इंक्लूड करना होता है किसी भी टाइमलाइन चार्ट पे. और अगर हम किसी थेरेपी एरिया का बना रहे हैं तो हम थेरेपी एरिया को उस पर फोकस रख सकते हैं, बट उसमें भी हमें करना होता है कि हम उसको स्टार्टिंग फ्रॉम वी गो इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर, लाइक हम वी स्टार्ट विद highest indication phase followed by the phase 1 of that. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टू सेट अप द टाइम एक्सिस. सो टाइम एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पे हमें क्या करना होता है, 5 to 7 years का हमें गैप लेना होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिया था 1 2 3 4 5 6 7, 5 to 7 years का हम यहाँ पे ऐसे एक इसको डिवाइड कर देंगे अपने टेबल को. देन विद इन दैट यू कैन यूज सेमी एनुअल और एनुअल इंटरवल्स डिपेंडिंग ऑन पाइपलाइन साइज. अब यहाँ पे हमें थोड़ा एग्जॉस्टिव दिखाना था, तो हमने सेमी एनुअल की बजाय क्या लिया, हमने यहाँ पे क्वार्टर्स दिखा दिए हर एक ईयर में. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि H1 एंड H2, हाफ वन ऑफ ईयर 2022 एंड देन हाफ वन और हाफ टू 2022. Then draw phase bars. Each row is equal to one drug candidate. Bar width is equal to duration in context phase extend to next phase with color change. This color coding. Phase 1 is equal to light. Phase 2 is equal to medium. Phase 3 is equal to dark. सपोज अब मेरे को मान लो ये जो एसेट है मेरा PF069326, इसी के ही मेरे पास 3 ट्रायल चल रहे होते हैं. ठीक है. तो मैं क्या करता, अब मैं उसके लिए या तो 3 रो बनाता और 3 रो में सेम इंफॉर्मेशन डालता. पर उसके लिए मैं एक और काम क्या कर सकता हूँ, इसी वाली स्लाइड पे सी व्हाट आई कैन डू. आई कैन ऐड 3 एरोज. ठीक है. दिस इज if you if in your case you want to prepare a sort of multiple trial view for the same asset. मैं एक एरो यहाँ पे डालता, मैं एक एरो यहाँ पे ऐड करता, एंड देन आई विल ऐड वन मोर एरो हियर. एंड यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, क्योंकि देखो पॉपुलेशन हर एक ट्रायल की डिफरेंट होगी, तो पॉपुलेशन को मैं इस बॉक्स में लिख देता. जैसे फॉर एग्जांपल ABCD, इस पॉपुलेशन को मैं यहाँ बॉक्स में लिख, डिटेल्स इसका एन साइज वगैरह भी मैं इसी में डाल देता. तो मैं ऐसे लिखता इसको 4 to 7 years. ठीक है. phase 3 एन साइज इज इक्वल टू 251, जोग्राफी US EU. ठीक है. तो मैं ऐसा करके यहाँ पे डिटेल्स डाल देता. देन ऐड कैटलिस्ट एंड माइलस्टोन. सो कैटलिस्ट और माइलस्टोन से मेरा क्या आता है, so you have to mark PDUFA and DA dates with a distinct vertical marker. जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने फेज कंप्लीशन डेट को सर्कल से दिखाया. इससे पहले वाले में हमने फेज जो भी हमारा डेटा कंप्लीशन था, हमने वहाँ पे ऐसे नोट डाल दिया, राइट. ये ब्लू वाला हमने नोट डाल दिया. और जो हमने एक और देखा था यहाँ पे इस एग्जांपल में, हमने क्या किया, हमने अपने फेज को या फिर हमने अपना इंटरम डेटा रीडआउट या फिर फेज कंप्लीशन डेट को हमने दिखाया इससे, एंड देन डेटा रीडआउट को हमने दिखाया इस वाले आइकन से. देन एनोटेशंस और कॉल आउट बॉक्सेस फॉर हाई इम्पैक्ट इवेंट. जैसे कोई बहुत ही मेजर इवेंट है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऐसे कॉल आउट्स डाल दूंगा यहाँ पे, राइट. देन वैलिडेट एंड अपडेट. सो always whenever you're doing this sort of timeline analysis, you will be preparing charts. सो हमें हर एक इन्फॉर्मेशन को मल्टीपल सोर्सेज से वैलिडेट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल मुझे कोई क्लिनिकल ट्रायल डॉट जीओवी पे इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैं कंपनी के वेबसाइट पर भी जाकर चेक करूँगा कि वो सेम इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है नहीं मिल रही है. देन अगर मुझे वहाँ पे नहीं मिल रही तो मैं किसी पेड डेटा सोर्स पे जा सकता हूँ, या फिर मैं किसी न्यूज़ वेबसाइट पे भी चेक कर सकता हूँ, राइट. और उसके अलावा कंपनी का जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, क्वार्टरली प्रेजेंटेशन है, मैं वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकता हूँ. Now, moving on to this next slide. So another way of uh, doing your pipeline analysis and then putting out the result is how is
bullseye or radar pipeline chart, right? So bullseye and radar pipeline chart is when you want to show और सी अभी जैसे हमने सबसे पहले वाला अपना चार्ट देखा था, ठीक है, तो हमने सबसे पहले वाले चार्ट पे क्या किया था, हमने वहां पे लिमिटेड कंपनीज थी हमारे पास, राइट, वी ओनली हैव लिमिटेड कंपनीज, बट वहां पे मुझे उनके बारे में कोई लग पा रहा था, एंड आई वाज अनेबल टू गेट इंफॉर्मेशन एज वेल कि मुझे किस टाइप का इनका मैकेनिज्म एक्शन है, और अगर मुझे बहुत सिर्फ लिमिटेड कंपनीज थी, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्लाइड, स्लाइड नंबर, दिस स्लाइड, जहाँ पे मुझे बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन दिखानी थी, बट सी अब मुझे अगर एक ही स्लाइड पे पाइपलाइन एनालिसिस करके बहुत सारी कंपनीज का इंफॉर्मेशन दिखाना, तो हाउ आई विल डू इट इन दैट सॉर्ट ऑफ scenarios. We will use a bullseye or radar pipeline chart. We have gathered all the information, right? Then what we have to do, we have to plot multiple dimensions of a company pipeline on a single spider or web chart. इसको हम bullseye भी बोलते हैं, फिर spider web chart भी बोलते हैं, right? Now इसमें हम क्या क्या डिनोट कर सकते हैं, पाइपलाइन साइज, फेज, डाइवर्सिटी, थेरेपी एरिया, और यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या होता है कि हमें मल्टीपल कंपनीज दिखानी होती है ना, उसी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस चार्ट। यहाँ पे हम रेट ऑफ दिखा सकते हैं, उसका टाइम दिखा सकते हैं, अप्रूवल का कॉल आउट डाल सकते हैं, बट इस पे हम बस एक बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिव व्यू डाल सकते हैं, राइट। एंड अगेन दिस इज आइडियल फॉर ब्रॉड प्रेजेंटेशंस, इन्वेस्टर डेक्स एंड पीयर बेंचमार्किंग। और ये हमें क्विकली बताते हैं कि ठीक है, देखो ये वाले एरिया में कोई ड्रग नहीं है, फिर इस वाले में सारे ही फेज 3 कैंडिडेट्स हैं, तो मतलब यहाँ पे तो एंट्री करना बहुत ही मुश्किल है। इस वाले एरिया में सिर्फ फेज 1 एसेट्स है, तो यहाँ पे हम इजीली एंटर कर सकते हैं। तो अब हम इस फिगर की बात करते हैं, इस इमेज की बात करते हैं, इस चार्ट की बात करते हैं, द लैंडस्केप ऑफ एआई डिस्कवर ड्रग कैंडिडेट्स एंड टारगेट, ठीक है। तो इस चार्ट पे हमने क्या देखा है कि हम ड्रग डिस्कवरी कर रहे हैं एआई के थ्रू, एंड एआई के थ्रू जो हमने ड्रग डिस्कवरी की है वो किस किस कंपनी ने किया है, और उनके कौन कौन से एसेट किस स्टेज में है। नाउ सी इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट बेनेवोलेंट, राइट, दिस कंपनी, सो बेनेवोलेंट के पास कितने एसेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एंड देन डिस्कवरी स्टेज, जो सबसे आउटर एरिया मेरा इस चार्ट का वो है डिस्कवरी, देन द नेक्स्ट इज प्री क्लिनिकल, जो ये वाला एरिया है, then this lighter green shade represents phase 1, this more dark over than represents phase 2 and phase 3. So if I look at phase 3, तो phase 3 में सिर्फ एक एसिड है, HDA की, HDAC जो है रिकोरिजन फार्मास्यूटिकल्स का। एंड देन अगर मुझे सिंपल सा है, मुझे देखना है कि किस कंपनी के पास बहुत सारे एसेट्स हैं डिस्कवरी फेज में, तो सी यहाँ पे मुझे पता लगा कि हाँ, श्रोडिंगर के पास बहुत सारे एसेट्स हैं डिस्कवरी फेज में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक ही चार्ट को हमने ऐसे सर्कल्स लिए अपने पीपीटी में, ड्रॉ किए, एंड देन उनको डिफरेंट एरिया में डिवाइड कर दिया फॉर डिफरेंट कंपनीज। देन उनमें हमने फेज 1 फेज 2 फेज 3 सारे एसेट्स दिखाए, उन एसेट्स का नाम लिखा। इस तरीके से हमें एक होलिस्टिक व्यू मिल गया। अगर मुझे एज्यूम करो चार्ट फाइजर के लिए बनाना होता है, एंड मुझे दिखाना होता है कि फाइजर का कौन सा एसेट किस थेरेपी एरिया में किस में है, तो मैं क्या करता यहाँ पे कंपनी का जो नेम है उसको रिप्लेस कर देता थेरेपी एरिया से, यहाँ पे आ जाता ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर, देन कुछ और आ जाता है यहाँ पे, डायबिटीज, ऐसे करके मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद जो जो ऐसे डर्मेटोलॉजी या फिर न्यूरोलॉजी में अलग अलग फेजेज मैं उसको यहाँ पे डालता, उसका नेम लिख देता हूँ। अगर मुझे इसी चार्ट को यूज करना है एक थेरेपी में बताने के लिए कि कैसे कैसे डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ड्रग यूज हो रही है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं फिर क्या करूँगा, ये जो डिस्कवरी क्लिनिकल फेज 1 फेज 2 3 ये कंसिस्टेंट रहेगा, बस मेरे जो ये है ना, जो आउटर में जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये बताना है कि ऑन्कोलॉजी में एंड ऑन्कोलॉजी में भी मल्टीपल माइलोमा में कितने टाइप की मोडालिटी है, मोडालिटी जैसे हमने बात की थी ये सब, कीमोथेरेपी, पार्प इनहिबिटर, बायोमार्कर, एफआर अल्फा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा एफआर अल्फा, यहाँ पे लिख दूंगा पार्प इनहिबिटर, यहाँ पे लिख दूंगा मैं कीमोथेरेपी, यहाँ पे कोई और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यहाँ पे कोई और क्लास है एक्शन, एंड देन उसके अंडर जो भी चार्ट्स जो भी ड्रग्स है मेरे उन सबको मैं यहाँ अरेंज कर दूंगा। So this is how you prepare a bullseye or radar pipeline chart. And again, why it is used? It is used for broad presentations, investor decks, and peer benchmarking. यहाँ पे एक होलिस्टिक व्यू चाहिए, हमें बर्ड साई व्यू चाहिए, जैसे ईगल होता है ना, ईगल ऊपर उड़ता है पूरा आसमान में, एंड देन इट लुक्स एट द ग्लोब, तो
उसके पास एक बर्ड आई भी होता है, तो अगर मुझे कोई बर्ड आई भी चाहिए तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा अपना पाइपलाइन चार्ट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड अप्रूवल टाइमलाइन एंड PDUFA डेट। सो सी स्टैंडर्ड रिव्यू जो मेरा होता है किसी भी ड्रग में, दैट इज मोर और लेस 12 months। देन अगर इसको प्रायोरिटी रिव्यू मिला है, मतलब उस ड्रग का हम अप्रूवल जल्दी कर रहे हैं, देन इट्स 6 months। देन ब्रेक थ्रू थेरेपी है वेरिएबल, एक्सेलरेटेड अप्रूवल है वेरिएबल, यहाँ पे टाइम हमारा कम होते जाता है, एंड फास्ट ट्रैक में वो अभी जल्दी हो जाता है। Key thing is why we need to add these approval timelines to pipeline chart। सी सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है एंड या फिर BLA सबमिशन डेट। ये सब हमें कहाँ से मिलता है? कंपनी की प्रेस रिलीज, 8K फाइलिंग्स, FTND डेटाबेस। ये सब इंफॉर्मेशन हमें BLA सबमिशन के इन सोर्स से मिल जाती है। देन अगर हमें PDUFA डेट कैलकुलेट करना है, तो हम देखते हैं कि चलो ठीक है, मान लो स्टैंडर्ड रिव्यू ड्रग का स्टैंडर्ड रिव्यू प्लस 12 months फॉर एक्सेप्टेंस डेट मीन्स अगर एक ड्रग की हमने फाइलिंग की जुलाई, और या फिर अभी हमारा अप्रैल या जो भी मंथ चल रहा है, ठीक है, इफ से कि ठीक है हमारी एक ड्रग है जो फेब्रवरी 2024 में मान लो उसका हमने फाइल किया, दैट मीन्स कि फेब्रवरी 2025 में इट विल बी एक्सेप्टेड। अगर इसको प्रायोरिटी रिव्यू मिला है तो हम जब एक्सेप्टेंस किया है वहां से 6 महीने कम कर देंगे। प्रायोरिटी रिव्यू जस्ट कि ड्रग का जो अप्रूवल टाइमलाइन है कम हो जाता है। देन उसके बाद अभी नहीं बात कर रहे कि हम टाइमलाइन चार्ट पे कोई हम डिस्टिंक्ट कलर डाल देंगे या फिर कोई शेडेड विंडो डाल देंगे कि हाँ इस टाइमलाइन के आसपास उसको अप्रूवल मिल सकता है। अगर हम वहाँ पे क्या ऐड कर देंगे कि यूएसआई का आइकन जिसपे जो ड्रग उसको अप्रूवल हो। फिर एडवाइजरी कमेटी होते हैं, अगर उनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है इन सब सोर्सेज से। देन अगर हमें फेज 3 है तो फेज 3 में हम कई बार फेज कंप्लीशन डेट से भी हमें लगा सकते हैं। और ऐसे टाइमलाइन में हम क्या कर सकते हैं कि फेज 3 वाले सेट्स को हम ग्रीन कर दें, उनके टाइम में ग्रीन कर दें, येलो कर दें हम अपने, फेज 2 रेड कर दें अपना फेज 1। इसके साथ ही देर इज ऑल्सो वन more slide on how you can do or how you can represent the pipeline analysis। मान लो मेरे पास like multiple companies हैं, and I just want to look at the number of assets जो उस कंपनी के डेवलपमेंट में, राइट। क्या करेंगे, गूगल पे या फिर उनके पाइपलाइन पे जाएंगे एंड देन वी विल सॉर्ट ऑफ प्रिपेयर अ टेबल। उस टेबल में हम ऐड करेंगे कि अच्छा फेज 1 में इतने एसेट्स हैं, फेज 2 में इतने एसेट्स हैं, फेज 3 में इतने सारे एसेट्स हैं। और वो सब करने के बाद हम एक बार चार्ट बना सकते हैं, एंड यहाँ से हमें ये पता लग जाएगा, ये सब क्वेश्चन हम ऐसे आंसर कर सकते हैं। एच कंपनी हैज अ डिप्रेस इसकी पाइपलाइन, तो हमें यहाँ पर देख के पता लग जाएगी कि ठीक है फेज 3 में सबसे ज्यादा एसेट्स इसके पास है, यहाँ पे है हमारे कंपनी ई के पास। तो ऐसे भी हम पाइपलाइन एनालिसिस को अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Then what are the red flags and key catalysts to monitor while doing pipeline analysis? So we need to understand red flags क्या है। रेड फ्लैग कोई भी वो चीज़ है जो हमारे पाइपलाइन के अप्रूवल को, एसेट के अप्रूवल को या फिर उसके डेवलपमेंट को डिले कर दे। एंड ग्रीन्स आर दोज वन विच इंक्रीज reduce the development timeline। So red flags में what we do uh, and how we do it। So see red flag में there is sometimes you will see कि कोई clinical hold हो गया है, राइट, एंड देन कभी कभी ट्रायल एनरोलमेंट पॉज हो गया, डिले हो गया है, प्राइमरी एंड पॉइंट हमने चेंज किया है, नेगेटिव रिव्यू आया है उसको, कॉम्पिटिटिव ड्रग को सुपीरियर एफिकेसी मिली है, की ट्रायल इन्वेस्टिगेटर में चेंज हो गया है, तो ये सब हमारे रेड फ्लैग्स हैं। देन व्हाट आर द सम सॉर्ट ऑफ ग्रीन फ्लैग्स? ग्रीन फ्लैग्स सर हमारा कोई डेटा रीड आउट आया है, एफडीए ब्रेक थ्रू डेजिग्नेशन मिल गया, हमें प्रायोरिटी रिव्यू मिल गया जिससे हमारा टाइमलाइन कम हो गया, एफडीए का अप्रूवल डिसीजन आने वाला है, कोई हम लेबल एक्सपेंड कर रहे हैं, ब्लॉकबस्टर से सबसे एनालिस्ट ने कमेंट्री दिया कि हाँ ठीक है इस वाले ड्रग को इस टाइम तक अप्रूवल कर सकते हो। सो ऑल ऑफ दीज आर थिंग्स। देन द नेक्स्ट key thing or the key takeaways while doing pipeline analysis is always triangulate your pipeline data across at least three sources: clinical trial, GOV, कोई company filings and pre-database। then प्राइमरी विजुअलाइजेशन हमें दिखाने, एग्जॉस्टिव हमें व्यू बनाना है, वी डू दैट यूजिंग द टाइमलाइन पाइपलाइन चार्ट, राइट। नेक्स्ट इज व्हेन radar chart is used, radar chart is used when you want to prepare a holistic view, when PDUFA date is used and why it is used because they have their catalyst or key trackers which you can use to visualize कि हाँ ये सब assets इस टाइम तक अप्रूव हो जाएंगे। देन
The fifth thing is always prepare pipeline chart based on project demand. से अगर आपको radar chart requirement है, तो you want to prepare a radar chart. In your case, you want to prepare a timeline chart, two timeline chart. Actively monitor red flags और green flags, ठीक है? और green flags और red signals कि ठीक है clinical hold पे है, enrollment post पे है, management departure है, etc etc. So all of this uh, you should take care of, and this is how you do the pipeline analysis. So starting from collecting information, right, using all of these sources for collecting information, then seeing okay, which type of view will suit better for a drug. This one, this is how you build a timeline pipeline chart, क्या information है मुझे चाहिए. So always keep in your mind all of these time details, and using this you will prepare a sort of, you will be doing this pipeline analysis very well and deriving insights out of them. Okay, thank you.